हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू आवर एम्पावर क्लासेस चैनल। मैं हूं लव शुक्ला एंड टुडे वी विल स्टडी क्लास 8 चैप्टर 1 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम लोग ने इसके फर्स्ट पार्ट में क्रॉप प्रोडक्शन का बेसिक नॉलेज देख लिया था, व्हाट इज क्रॉप वो देख लिया था, और क्रॉप्स के टाइप्स कैसे सीजन के बेस में कि कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है, ठीक है। तो वो सब चीजें देख ली थी। तो आज हम लोग उन्हीं टाइप्स के डेफिनेशंस लिखेंगे। So let's start. First is kharif crops. First is kharif crops. So kharif crops, the rainy season in India is generally from June to September. Okay, means kharif crops are rainy season crops. Okay, example is paddy, soybean, groundnut, cotton and rice, etc. Okay, so these are called kharif crops. Means खरीफ क्रॉप वो होते हैं जो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं। कब ग्रो होते हैं? रेनी सीजन में ग्रो होने वाले क्रॉप्स को हम लोग बोलते हैं खरीफ क्रॉप। और रेनी सीजन कब से कब होता है? जून टू सितंबर। एंड पैडी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एंड राइस, दीज आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट वन इज रबी क्रॉप। Rabi crops. Okay, write it down. The crops grown in the winter season. The crops grown in the winter season, and winter season is from October to March. October to March, winter season, are called Rabi crop. Are called Rabi crops. Okay, means the crop which grow in winter season are called Rabi crop. Example: wheat, gram, pea, mustard. These are called Rabi crops. Now, third one is Z crop. What? Z crop. Z crops. Okay. Third one is Z crop. The crops which grow in the summer season. The crops which grow in the summer season are called Z crops. Okay. Example: muskmelon, watermelon. Muskmelon and watermelon. Okay.
and etc. are called Z crop. Z crop means those crops which grow in summer season. Okay. Now we will know the basic practices of crop production. Crop production means when we have to grow the crops, यानी जब हमको क्रॉप्स ग्रो करना होता है तो हमको पहले क्रॉप्स ग्रो करने से पहले की जो प्रिपरेशन होती है, सॉइल की प्रिपरेशन होती है, फिर उससे पहले क्रॉप्स ग्रो करने से पहले क्या क्या चीजें करना होता है हमें सॉइल के साथ, तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे. ओके. और जब क्रॉप्स के लिए हम लोग अगर सीड लगा दिए और जब क्रॉप्स ग्रो होने लगी फिर क्या करना होता है वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो दैट practices are called agricultural practices. What? Agricultural practices. So write the heading agricultural practices. Agricultural practices. First one is preparation of soil. Second, sowing. Third, adding manure and fertilizers. Fourth, irrigation. Fifth, protection from weeds. Fifth is protection from weeds. Weed means jungli घासें, हाँ? The unnecessary grasses which grow in the crop, in the field. Fifth one is protection from weeds. Sixth is harvesting. And seventh is storage. What? Storage. And don't worry, these are my handwritten notes and I will give you my handwritten notes in the description box of the video. Okay? Means जो हमारा जो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, तो मैं उस वीडियो में मैं पूरी अपनी फर्स्ट चैप्टर की हैंड रिटन नोट्स सेंड कर दूंगा, लाइक शेयर कर दूंगा. एंड इन एवरी चैप्टर, एवरी वीडियो of that chapter, last video of that chapter, I will share the PDF, means my handwritten notes. Okay, so first is preparation of soil. What? Preparation of soil. Now means first step is preparation of soil, then sowing, then adding manure and fertilizer. Fourth is irrigation, protection from weeds, harvesting and storage. So first we will discuss what is preparation of soil. Okay, the process of loosening and turning of the soil is called plugging or tilling. And the process of loosening and turning of soil is called plugging and tilling. Okay, means simple है. जैसे आप लोग कभी गांव गए होंगे अपने अपने, ठीक है, समर टाइम पे, तो अपने मामा या जिसके आप भी गए होंगे तो आप उन लोग को देखते होंगे जो ट्रैक्टर चलाते हैं हम लोग अपने फील्ड पे, पीछे एक कल्टीवेटर लगाए जाते हैं,
तो क्या करते हैं, वो कल्टीवेटर मिट्टी में पहले सेट कर देते हैं, फिर जब उसको ट्रैक्टर से खींचते हैं आगे की तरफ, तो क्या होता है, जो नीचे वाली मिट्टी रहती है वो क्या हो जाती है, ऊपर आ जाती है। तो ये टर्निंग ऑफ सॉइल है, यानी जो नीचे जो न्यूट्रिएंट वाला जितना भी पोर्शन है सॉइल का, वो वाली सॉइल हम लोग ऊपर लाते हैं, जिससे कि हमारी जो क्रॉप्स है वो क्या हो सके, अच्छे से ग्रो हो जाए। और सॉइल को क्या करते हैं, थोड़ा लूज भी रखते हैं, लूज। अब ऐसा तो नहीं जैसे यहाँ पे अगर आप लोग रोड पे अगर मान लीजिए, कोई करेगा तो है नहीं, बट मान लीजिए अगर क्रॉप्स ग्रो करनी तो यहाँ पे तो होगी नहीं, कौन अभी इतना ज्यादा खोदे, और वैसे भी कितना हार्ड है। मान लीजिए खोद के नीचे मिट्टी मिला दी है आप लोग, बट तब भी नॉट पॉसिबल ना। तो हमको सॉइल को क्या करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है, लूज यानी थोड़ा सा ढीला रखना पड़ता है, ताकि अगर जब हम लोग क्रॉप्स ग्रो करें तो हमारी जो क्रॉप्स की जो सीड्स है वो ज्यादा नीचे तक अच्छे से रह सके, ज्यादा नहीं बट इतना रह सके कि क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो सके, और उसकी जो रूट्स निकले उसमें से वो सॉइल को एकदम अच्छे से पकड़ के रखे। ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। नेक्स्ट, this is done by using a plug. This is done by using a plug. इसे हम प्लग की हेल्प से कर सकते हैं। एंड यू आर थिंकिंग व्हाट इज प्लग? प्लग इज दिस, see here, it is a plug, okay, this is a plug, and it is a, there is a farmer which held means लगाया है प्लग को किसके ऊपर, बुल के ऊपर, ओके। तो दिस इज प्लग, इसकी हेल्प से हम लोग ये प्लगिंग और टेलिंग कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हो गया, प्लग हो गया, एंड हो, ठीक है, और कल्टीवेटर ये, these are all the material implements by which we can plugging or tailing do, okay। So plug is made of wood or iron, मीन्स जो प्लग है वो वुड का भी बन सकता है और आयरन का भी, okay। See here, this part, this is called plug shaft, this part may be of wood or may be of iron। Next, the plug field the plug field may have big clumps of soil called crumbs, ओके। मीन्स जो प्लग फिल रहती है उसमें बिग बिग क्लम्प्स आते हैं। बिग बिग क्लम्प्स मीन्स जो अंदर से जब मिट्टी निकलती है या फिर जब हम लोग उस खेत को कल्टीवेट करते हैं तो मिट्टी जो निकलती है, तो कुछ कुछ मिट्टी और उसमें क्या रहता है, अननेसेसरी ग्रासेस रहती है, यानी जो जिसे हम लोग वीड्स बोलते हैं, यानी जो जंगली घास रहती है वो भी एकदम उलझी रहती है, एकदम लाइक अ बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है मिट्टी से, तो उसे हम लोग क्लम्प्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लम्प्स बोलते हैं, ओके। दैट इज कॉल्ड क्लम्प्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रम्स। मीन्स उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं क्लम्प, जो प्लग्ड हुई फील्ड है जिसमें वो क्लम्प्स हैं, मीन्स फील्ड हो गई प्लग्ड हमारी, अब उसमें बड़े बड़े क्रम्स है, क्या है, सॉरी क्लम्प्स है, क्लम्प्स, व्हाट, क्लम्प्स। सो उस क्लम्प्स वाली फील्ड को हम लोग क्रम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रम्स। नेक्स्ट पॉइंट, it is necessary to
ब्रेक दैट क्लम्स, यानी हमें उस क्लम्स को ब्रेक करना नेसेसरी, यानी जब तक उस क्लम्प को तोड़ेंगे नहीं तब तक हमारी फील्ड प्रॉपर वे में नहीं आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। व्हाट? एग्रीकल्चरल implements. Okay, before sowing the seed, seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. सॉरी गाइस, आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, बैकग्राउंड में बहुत सारी साउंड इफेक्ट्स आपको आए होंगे, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, अगर वो क्लम्स को तोड़ेंगे, क्लम्स को ब्रेक कर दिए, ठीक है, तो हमें बेटर यील्ड मिल सकता है। बेटर यील्ड यानी अच्छी और ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो सकती है। सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। दिस is done with the help of various tools. First is plug, second hoe, and third cultivator. So these are three things by which we can prepare our soil. Okay, so that's all for today. We will meet in our next video. So take care, goodbye, तब तक के लिए bye bye and जय हिंद।